चलिए शेक्सपियरियन कॉमेडीज को हम देखते हैं. एज फार एज हिज राइटिंग कॉमेडीज आर कंसर्न, सो ही फेल्ट टू बी or he seemed to be instinctive. Means comedy comes from his within. And tragedy is a matter of art or skill for him. He was more a skillful artist or a skilled artist in creating tragedies. And when he created comedies, so he seemed to be more instinctive artist. Instinctive matlab that comes from his within. He feels natural. And as far as his giving variety or quality to the dramas, so Shakespeare's comedies are more wholesome creations from that perspective. हालांकि हम कॉमेडीज और ट्रेजेडीज में जब शेक्सपियर की कंपैरिजन करते हैं तो वो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है दैट tragedy is more important and tragedy is more refined creation than comedy, because according to Aristotle, tragedy arises out of epic and comedy arises out of satire. Two forms of literature, one refined, one very uplifted kind or uplifting kind of genre of literature, that is epic. The supreme kind of literature is epic. And base kind of literature, that is satire. When the representation of noble action is concerned, so it results in epic poetry or epic creation. When we narrate or represent the meaner kind of representation of human being, so it results in satire. And out of epic arose tragedy, and out of satire arose comedy. तो वो क्लासिकल कंसेप्शन कहीं ना कहीं माइंड में रहती है कि कॉमेडी इज less refined creation than a tragedy. However, if we consider Shakespeare and writing comedies, तो वो वहाँ पे कुछ अलग ही हमें मिलता है. मतलब शेक्सपियर इज अ जीनियस when he writes tragedies, means comedies, sorry. Or when he writes tragedies, so he felt to be somewhat confined. Harold Bloom and Dr. Johnson, they both felt like this, particularly Dr. Johnson, when Shakespeare created tragedies, so he felt somewhat confined, hesitant. And when he wrote comedies, he felt liberated. It seemed to be an instinctive work from the genius of Shakespeare. So शेक्सपियर ने ज़्यादा जो आप समझ सकते हो कि क्लासिफिकेशन, वैरायटी और स्ट्रोक ऑफ जीनियस, वो कॉमेडीज में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि tragedies में. If we talk about comedies of Shakespeare, so we can find three categories according to which we can classify various comedies. Purely romantic or this particular type of comedy can be separately dealt with in the heading romances or tragicomedy. However, we can touch here because we are taking comedy as a broader category covering comedy and tragicomedy both. Or romances. The concept of romance can also be taken in other way. एक तो रोमांस का कॉन्सेप्ट आता है का ट्रेजिक कॉमेडी में, और एक रोमांस का कुछ टचेज आपके अदर ट्रेजिडीज, कॉमेडीज, सारे ड्रामाज में भी मिलता है. जो कॉमन आप जिसको रोमांसेस कहते हो वो भी है. ठीक, पहले इसकी बात करिए आप. इसमें आप देखोगे तो मिंगलिंग ऑफ मर्थ एंड सैडनेस. जो ट्रेजिक कॉमेडी में होगा तो वो हाफ ट्रेजेडी हाफ कॉमेडी इस तरह का कॉन्सेप्ट तो मिलेगा ही. और यहाँ पे इसमें आप ले भी सकते हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस को भी ले सकते हो. इफ वी फॉलो द मिंगलिंग ऑफ बोथ सैड एंड mirthful scenes, the joyful scenes and the sad scenes, the sorrowful scenes, यहाँ पे वो भी ले सकते हो. तो एक कॉन्सेप्ट तो यही रहा. ठीक, इसमें इमोशनल या जैसे हाफ इमोशनल एंड हाफ इंटेलेक्चुअल.
In comedies, you can find the full usage of intellect also. इंटेलेक्ट आपको कहाँ मिलती है? जैसे कि क्लाउन्स के जो कैरेक्टर्स हैं, clowns have been in some comedy, some dramas of Shakespeare, are the mouthpiece of Shakespeare. Because whatever the dramatist has to communicate directly to the audience, he gets it said by the clowns. वो clowns उसके माउथपीस की तरह है, जो जो इंटेलिजेंस और जो फिलोसफिकल बात कहनी भी है तो वो डायरेक्टली मीन्स द ड्रामेटिस्ट, द आर्टिस्ट, द राइटर डज नॉट टेल. और यही एक क्या है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट राइटर, दैट ही whatever he has to say he gets it said, communicated by the characters. Some characters are the mouthpiece. और ये आपको माउथपीस का और कॉन्सेप्ट जीबी शॉ के यहाँ ज्यादा और मिलेगा. जीबी शॉ में आपको हर कैरेक्टर में मतलब हर ड्रामा में एक ना एक कैरेक्टर ऐसा मिलेगा जो कि जीवी शो वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द रीडर, वो कैरेक्टर के थ्रू कहलवाता है. जैसे ब्लंट शली, एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्लंट शली का कैरेक्टर देख सकते हो. इट इज नॉट ब्लंट शली दैट communicates the things. It is GB Shaw himself. The intellectual scenes or intellectual talks, they are there in the dramas of Shakespeare, particularly in comedies. And then he had chosen the characters, the clowns. The clowns are the characters, the kind of characters that tells what the dramatist or the writer has to say. Means that when it is about the striking of the intellect of the audience is concerned, so it is also communicated here. ये भी यहाँ पे आपका आ जाएगा. तो हाफ इमोशनल, हाफ इस इंटेलेक्चुअल, और प्रेजेंटिंग रियलिस्टिक एज रोमांटिक और वाइस वर्सा. Some scenes are there which seem to be unrealistic, जस्ट लाइक इन रोमांसेस, जो फैंटेसी वर्ल्ड हुआ या फिर जिस तरह की भी सेटिंग हुई पर्टिकुलरली, वो सेटिंग आपको लगती भी है कि यार हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट द पर्सन बिकम्स अ विजार्ड, जस्ट लाइक इन केस ऑफ प्रॉस्पेरो. एंड हाउ कम ही इज इजीली well versed in the art of black magic or all this kind of necromancy or magic. So he became a magician. मतलब आप समझिए उसको, he was exiled and he came to an island which was already inhabited, which was already in the dominance of the witch Sycorax. It means the magic was already there in the island. Magic or the impact of supernature or supernatural element. Prospero came and then he started doing the things, and within no time he got the mastery over the black magic or the magic, and then he was able to free the island from the clutches of that witch Sycorax. एक ऑर्डिनरी आदमी मतलब ह्यूमन बीइंग ही हुआ वो. ही वॉज एक्साइल्ड किंग. सो ही वॉज अ किंग नॉट अ नेक्रोमेंसर, ही वॉज अ किंग नॉट अ ब्लैक मैजिशियन, ही वॉज अ किंग नॉट अ विजार्ड व्हेन ही वॉज एक्साइल्ड. और यहाँ पे आते अचानक से उसको क्या हो गया, he became master in black magic, and then he became so powerful black magician that he freed the entire island from the clutches of the witch Sycorax. जो विच अभी तक पूरे उस आइलैंड को कंप्लीटली अपने डोमिनेंस में रखती थी, उसको इन मतलब ही हैड द क्वालिटी और ही हैड द skill, or he developed some skill, or he developed some kind of trick that he was able to get it free. तो ये मतलब कुछ अनयूजुअल सा लगता है. ऑल ऑफ अ सडन एक पर्सन आया, या तो पहले से ही प्रोस्पेरो क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक में और इस तरह की चीजों में उसकी मास्टरी होती, विच वी डोंट नो, विच वी आर नॉट टोल्ड इवन इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी. कभी भी ऐसा किसी स्पीच में लगा भी नहीं दैट ही वाज गिवन द ट्रेनिंग इन ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट. दैट्स that suggests that he was a wizard from the beginning. ही वॉज अ किंग एंड द विजार्ड ऑल्सो. ऐसा तो कहीं भी नहीं था, लेकिन आइलैंड पर आकर के उसको अचानक से ऐसा हो गया. दूसरी बात क्या थी, उसने भी वही किया. ही ऑल्सो हेल्ड द आइलैंड इन हिज डोमिनेंस. अर्लियर इट वॉज अंडर द डोमिनेंस ऑफ साइकोरेक्स, एंड नाउ इट इज इन द डोमिनेंस ऑफ प्रॉस्पेरो. वेयर लाइज द डिफरेंस. उसने एरियल को अपना स्लेव बना करके रखा था, इसने कैलिबन को बना के रखा है.
So मतलब the story is more or less the same. It is all about power. It is all about dominance. Earlier she was the dominant. और उसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अगर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी आप अप्लाई करते हो, तो शी वॉज द नेचुरल डिसेंडेंट और नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ दैट आइलैंड, द विच साइकोरेक्स वाज द रियल और नेचुरल इनहेबिटेंट, और शी गॉट दिस आइलैंड एज ए हेरिडिटी। वो उसका था, शी वॉज अ नेचुरल डिसेंडेंट और नेचुरल इनहेरिटेंट। हु वॉज प्रोस्पेरो? प्रोस्पेरो वॉज द एलियन फोर्स। प्रोस्पेरो वॉज द एलियन colonizer who came and then he dominated the other people's land। तो उस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। इनफैक्ट इमोशनल, और यहाँ पे लौट करके आते हैं इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, तो ये आपका प्योरली रोमांसेस में दिख जाएगा। मतलब टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज इमोशनल एंड टू अदर एक्सटेंट इट इज इंटेलेक्चुअल व्हेन वी गेट टू नो समथिंग बाय द क्लाउन्स। क्लाउन्स आपके कई सारे ड्रामाज में क्लाउन्स वगैरह है भी। इसके बाद में जो रियलिस्टिक है, वो रियलिस्टिक टर्निंग इनटू द रोमांटिक एंड रोमांटिक इज टर्निंग इनटू द रियलिस्टिक। ये कई सारे सीन्स हैं। दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स। फिर आती है बात सीरियस कॉमेडी। रोमांसेस और प्योरली रोमांटिक, उसमें तो आप ऐसी स्टोरीज भी ले सकते हो जैसे मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विच इज अ कॉमेडी एंड इट हैज द एलिमेंट्स ऑफ रोमांसेस ऑल्सो। रोमांस के लिए एक और एलिमेंट भी होना चाहिए कि जो सेटिंग है, सेटिंग सीम्स टू बी रोमांटिक। रोमांटिक मतलब it should be in a fantasy world, it should be in some far off place, it should be in some remote place, it seems to be unrealistic sometimes, the setting seems to be improbable other times। तो ये सारी चीजें इसमें लगनी चाहिए आपको। दो तीन और ड्रामाज में मिल सकती हैं। और अगर कॉमेडी की ही बात करते हैं तो कॉमेडी में कुछ कॉमेडीज, मतलब जैसे ट्रेजिक कॉमेडी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम दोबारा भी समझ सकते हैं, जो सीरियस है। सीरियस में आपकी यहाँ पे आ सकती है सीरियस कॉमेडी में जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इट कैन कम इन द कैटेगरी ऑफ सीरियस कॉमेडी, क्योंकि ये उस तरीके से फार्स नहीं है जैसे वो कॉमेडी ऑफ एरर फार्सिकल कॉमेडी में आ सकता है। तो वो यहाँ पे जो है वो आपकी सीरियस कॉमेडी में आएगी मर्चेंट ऑफ वेनिस। और ये ट्रेजिक कॉमेडी जैसे सिम्बलिन, विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट, ये सब सीरियस कॉमेडी में आ सकती है। सीरियस कॉमेडी में आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस का यहाँ पर इंक्लूजन आप कर सकते हो, क्योंकि वो उस तरह की मर्थफुल कॉमेडी नहीं है, लेकिन वो सीरियस कॉमेडी में आपकी आ सकती है। तो वो ट्रेजिक कॉमेडीज और इस तरह की कॉमेडीज आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। यानी हाफ कॉमेडी हाफ ट्रेजेडी, दैट कॉन्सेप्ट यू कैन इनकॉर्पोरेट हेयर ऑल्सो। दूसरा यहाँ पे आपका जो और रहेगा सीरियस कॉमेडी में, एक तो ये एलिमेंट हुआ ही। दूसरी चीज क्या है, जो सेटिंग्स हैं या सर्कमस्टांसेस हैं, वो पूरी स्टोरी को सूट भी करती हैं। ये भी आप उसमें आएगा। मतलब पूरा सीन ऐसा नहीं लगेगा आपको कि वट एवर इज हैपनिंग ऑन द स्टेज एंड वट इज द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट है या जो बैकग्राउंड है वो अनसुटेबल लगे आपको, वो भी आपको लिंक करती हुई सिंक करती हुई उसमें होगी। तो बैकग्राउंड शूटिंग द एक्शन, ये भी आपको उसमें मिल जाएगा। फिर एक जो तीसरी कैटेगरी बताई थी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक कॉमेडी, जो कॉमेडी ऑफ मर्थ, और in which the characters seem to be more human rather than fantasized. It is directly in contrast of romantic comedy or romances or what we can say tragic comedy। उसके ये अगेंस्ट में आप जा करके बात कर सकते हो। यहाँ पर आपको चीज़ें जो मिलेंगी वो नेचुरल रियलिस्टिक प्लेन पे मिलेंगी। जैसे जो ह्यूमन एरर्स की बात की जाए, जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स हुई, या फिर अबाउट द टेमिंग ऑफ द पीपल, मतलब टेमिंग ऑफ द श्रू का एग्जाम्पल यहाँ पर, ट्वेल्थ नाइट का एग्जाम्पल। ट्वेल्थ नाइट में भी थोड़ा सा आपको चीज़ें फैंसीफुल लगेंगी। मतलब हाउ कम इट इज नॉट पॉसिबल दैट दैट ऑल द अदर कैरेक्टर्स वर मिस्टेकन थ्रू आउट द प्ले। वॉयला, वॉयला की आइडेंटिटी, इट रिमेन अ मिस्ट्री, और it if it was not a mystery, so all the people remain in the assumption
that it was a boy, it was a girl or a boy, मतलब जो आइडेंटिटी थी वो आइडेंटिटी किसी को पता ही नहीं चल पाई. He posed as a boy Cesario and then he remained a Cesario throughout. Well, how come it is possible that the people could not discern, could not notice that it is a girl or a boy throughout? The assumption or the people can get mistaken for some time. वो आइडेंटिटी कुछ देर के लिए वो हाइड की जा सकती है, लेकिन इफ इट इज थ्रू आउट तो वो कैसे पता नहीं चलेगा उसको. इट इज नॉट रियलिस्टिक इन दैट सेंस. It is more fantasized because the dramatist wants us to look the things like that rather than believe our own discretion, believe our own sense of judgment. उसकी बजाय वो क्या चाह रहा है कि भाई वॉट एवर आई एम टेलिंग यू हैव टू बिलीव. इफ आई से दैट वॉयला इज अ बॉय सो यू हैव टू बिलीव वॉयला इज अ बॉय. You don't have to apply your instinct or you don't have to apply your rationality. ये कुछ नहीं अप्लाई करना, तो वो थोड़ी सी और फैंसीफुल आपको लग सकती है. बट देर आर कॉमेडीज विच आर प्योरली रियलिस्टिक, मीन्स द एक्शन दैट इज ऑन ह्यूमन प्लेन. We can find the characters who are human only. They manifest the human qualities. वो सारी ह्यूमन मतलब जेलेसी और फीलिंग ये सब भी दिखाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियलिस्टिक कॉमेडी इन शेक्सपियर ऑल्सो. ठीक. और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेटिंग एंड कैरेक्टर्स क्लोज टू रियलिज्म. whatever we were studying in realism. So वो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कर सकते हो. रियलिज्म मीन्स समथिंग दैट इज more close to the real life. The kind of character that we meet in real life are presented on the stage. The kind of background or the setting, the scene that we come across daily are presented on the stage rather than some fanciful or some wizardly or some far off, some unrealistic, some imaginary scene, imaginary qualities that the dramatist is presenting in the characters. ऐसे रियलिस्टिक का मतलब ये हुआ द कैरेक्टर्स आर ऑन द ह्यूमन प्लेन. whatever they do we can find the people doing in our daily life. The place or the setting that we are witnessing in the play are also witnessed in a common life. So जहाँ पे ये सारी चीजें होंगी वो कौन सी होंगी, रियलिस्टिक टचेस होंगी. जो कॉमेडी ऑफ एरर्स, टेमिंग ऑफ द श्रू, टू नोबल किंग्समैन, ये टू नोबल किंग्समैन थोड़ा सा फैंसीफुल मान सकते हो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन नाइट्स टेल. उसको आप समझ सकते हो, अलग चीज है. लेकिन यहाँ पर कुछ और ही है. यहाँ पर हम रियलिस्टिक चीजों की बात करते हैं. ठीक. कोर्टली लव, कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्टली लव इज ऑल्सो देयर इन द रियलिस्टिक स्टोरीज. अब ये कोर्टली लव, it was not a new thing particularly at that time because that time was the court of kings. That time was the time of court of kings or the court of estate owners, जो lords, ड्यूक, डचेस. तो उसमें ये कॉमन था. जैसे कि आप ड्यूक और साइनो का वो समझ लीजिए. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्टली लव. सो द ड्यूक, द किंग हिमसेल्फ इज a prey to love or is completely obsessed with love for Olivia. However, he did not get it back. फिर other characteristics की हम बात करते हैं जो common characteristics है. Apart from the three types of comedies we talk about, realistic means the common characteristics that are common for all types of comedies. Be it romances, be it tragic comedy, be it mirthful comedy, be it serious comedy, be it realistic comedy. Means all sorts of stories, all sorts of comedies, they share the common characteristics. And the first one is women centric. The tragedy, on the other hand, is a tragedy of a man, male centric. Here, comedies are women centric. If at all we can find the characters, the dominance of the characters in comedies.
However, comedies are always, particularly the comedies of Shakespeare, they are plot centric, they are story centric. The characters are secondary. And if we give slight weightage to the characters, if we feel that characters are also dominant in the comedies, so which characters, male or female? Here in the comedies we can find female characters more influential. वो विमेन कैरेक्टर्स आपको हर ट्रेजेडी, हर कॉमेडी में डोमिनेंट तरीके से मिल जाएंगे, चाहे वो वॉयला, इमोजिन, पर्डिटा, पोर्शिया, ओलिविया, मिरांडा, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, सीलिया, so Hippolyta. So these women characters are influential in these comedies or in all sorts of comedies. अब वो comedies का type, irrespective of the type of comedy, यहाँ पे बात है कि comedy में male centric और female centric. So we can come to know that it is female centric. यहाँ पे जो characters हैं वो क्या है, women centric है सारी comedies में. हालांकि मेल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो देयर, ऑल sorts of characters are also there which complement the life of common people, the story. However, some special attention, if we talk about of special attention given by the dramatists to the characters, so in comedies it is women character. Just like in tragedies it is male character, here in tragedies it is women characters. Male characters are subsidiary, they are secondary. उनका रोल ही थोड़ा सा क्या है, सपोर्टिव है, ज्यादा फोकस किस पे है. इनफैक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा फीमेल कैरेक्टर्स आर रेस्क्यूइंग रेस्क्यूइंग मेल कैरेक्टर्स. जैसे पोर्शिया के कैरेक्टर को आप देखोगे तो पोर्शिया वाज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू रेस्क्यू एंटोनियो. तो वो कैरेक्टर जो है वो सब्सिडियरी है, यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है. फिर थीम. Theme, love and marriage. In tragedies, we talked about the themes accepting love. Here, love is the main theme. Love and marriage is the main theme. It is all about love affair. It is all about making matches. If it is all about uniting into marry, making or marriage, resulting the circumstances in a matrimony. So almost all the comedies they are centered on this particular theme. चाहे वो आप ट्वेल्थ नाइट लीजिए या फिर एज यू लाइक इट लीजिए, वो भी रियूनियन ऑफ द लवर्स एंड रिजल्टिंग इन द मैरिज. ट्वेल्थ नाइट लीजिए, इट इज अबाउट द मीन्स फाइंडिंग लव of the choice and then ultimately resulting in finding the match. और मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी लीजिए, मतलब इन ऑल द कॉमेडीज यू कैन फाइंड दैट द हीरो एंड हीरोइन अल्टीमेटली दे आर यूनाइटेड and probably they get married. If they are united in the end, so it is understood that they will get married. So it results, the theme is love and it results in marriage. The dominant thing is love and marriage. Otherwise, in tragedies, it is something else. Love can be the subsidiary theme, but not the cause of the tragedy for the character, the main character. यहाँ पर वो चीज different है. फिर आता है आपका mirth and laughter. Laughter में आपका farce. Mirth and laughter is the element or the cause or the consequence of the comedy. What we get in turn, what we get in return after investing our time in comedy, so what we get laughter, we get mirth, we get joy, we get lightness. Our whole mood gets light. And if we talk about the examples, so the farces, the elements of farce, farce, just like melodrama, the farce also has means farce bears the same relation to the drama as the melodrama to the tragedy. What melodrama is or melodramatic element to the tragedy, farce or farcical element to the comedy. अब फार्स में क्या है, वही क्रूड सीन्स,
sometimes physical movements for their own sake. You stumbling, you staggering, and then you are making awkward movements, you are falling, and then you are making means awkward facial gestures in order to make the persons laugh. This is what we get in reality also in our common day life. If we happen to fall or before somebody else, that somebody is means in most of the cases he tends to or she tends to laugh or smile. How it comes, the reason is unknown. However, or in most of the cases, they realize also that we should not have laughed at all. But we cannot help laughing if we happen to see somebody falling or somebody stumbling, not falling, stumbling in an awkward way. That seems funny. Sometimes it seems funny. तो वही तरह की मूवमेंट्स वो जानबूझ करके इस पे इंसर्ट की जाती हैं, जैसे कि आप टॉम एंड जेरी में मिस्टर बीन की, या फिर जो चार्ली चैपलिन के शोज, इनमें आप देखोगे तो देर आर नो डायलॉग्स, हाउ एवर द मूवमेंट्स मेक अस laugh. It is all about gestures, conditions और movements, physical phenomenon. सारी कॉमेडी वहीं से ही निकलती है. They don't utter a single word. Nevertheless, the kind of activities they perform make us laugh. तो फार्स में इस तरह की इवेंट्स की एक्सेस होती है. दूसरा एक एलिमेंट क्या होता है? लैंग्वेज. या तो आप फिजिकल मूवमेंट या जो ऑकवर्ड पोस्चर, ऑकवर्ड मूवमेंट, वो आपको हंसा सकती है, या फिर लैंग्वेज, द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज. तो यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी होती है? वही क्रूड लैंग्वेज, वही वल्गर जोक्स समटाइम्स, और क्रूड लैंग्वेज और जोक्स, normal jokes, vulgar jokes, abusing language, or means creating an intrigue for someone, and that results in the laughter, the complicated web, just like the web of ट्वेल्थ नाइट. इन ट्वेल्थ नाइट जो मारिया वाला जो एपिसोड था मेलवोलियो का, दैट इज कंप्लीटली फॉर द लाफ्टर. उसका मेन एक्शन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था. वो प्राइमरली किसके लिए था? प्यूरिटन्स को अटैक करने के लिए. और उसी में जिस तरह का प्लॉट उसके लिए तैयार किया गया, दैट रिजल्ट इन लाफ्टर और सटायर. तो वो फार्सिकल एलिमेंट्स हैं. बाकी फार्सिकल एलिमेंट्स बहुत सारे अदर प्लेज में भी हैं, जैसे टेम्पेस्ट में भी आपको फार्सिकल एलिमेंट्स, जो ट्रिंकुलो और स्टेफनो, इनका जो सीन था वो प्योरली फार्सिकल था. इट इट इज इंसर्टेड. ठीक. जो क्रूड लैंग्वेज है कैलिबन की या स्टीफनो ट्रिंकुलो की, द वे दे अब्यूज ईच अदर एंड देन अब्यूज प्रोस्पेरो. तो वो, और जो काइंड ऑफ इंट्रीग दे वीव, जो भी कॉन्स्पिरेसी करते हैं वो प्रोस्पेरो के खिलाफ, मिरांडा के खिलाफ, और मिरांडा के बारे में जो सोचते हैं, दैट इज ऑल फार्सिकल एलिमेंट्स दैट हैव बीन इंसर्टेड. तो ये चीजें आपको मर्थ एंड लाफ्टर दोनों में ही मिलेगी. तो मर्थ मतलब सीरियस लाफ्टर मतलब यू फील गिगल्ड फ्रॉम योर विद इन. एक तो होती है वो अंदर से गुदगुदी टाइप की, और अंदर से थोड़ी अच्छा सा फील होना, हंसी और लाइट फील होना. और एक होता है कि आपको आउटवर्डली यू फील लाइक लाफिंग, यू आर लाफिंग आउट लाउड, हंसी छूट रही है आपको, गफोइंग टाइप की जिसको हम कहते हैं, एकदम से जो लाफ्टर होती है दैट रिजल्ट्स इन लाउड साउंड. तो इस तरह की, तो वो भी यहाँ पे है. ये मतलब ऑल द कॉमेडीज दे आर अबाउट mirth एंड लाफ्टर पर्टिकुलरली. ठीक. जो ट्रेजी कॉमेडी का अब देखोगे तो उसमें आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर द कैरेक्टर. For the protagonist, it is not easy for the protagonist to come to a resolution in the end. The main characters, चाहे वॉयला के लीजिए, चाहे वो ओलिविया के लीजिए, पर्डिटी का लीजिए, इमोजिन का लीजिए, पोर्शिया का लीजिए, और वेर एवर मीन्स इन मोस्ट ऑफ द कॉमेडीज जितने भी कैरेक्टर्स हैं, रोजलिंड का लीजिए, सीलिया का लीजिए, दे आर ऑल स्ट्रेसफुल बिकॉज दे हैव टू कम आउट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन दे हैव फॉलन इनटू. जो भी एक डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेशंस है उससे बाहर आने की उनकी जो एक स्ट्रगल रहता है, वो दैट इज अनडाउटेडली स्ट्रेसफुल. However, it results ultimately in their favor, but until then they feel stressful. They keep
थिंकिंग अबाउट द वेज थ्रू विच दे कैन कम आउट। जो लाफ्टर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदर कैरेक्टर्स की है, उन कैरेक्टर्स की नहीं। जो सब्सिडियरी कैरेक्टर्स हैं जैसे फूल्स और क्लाउन्स, एक तो ये रहे। और फूल्स और क्लाउन्स का जो एक अलग सब प्लॉट होता है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ट्वेल्थ नाइट में आप देख लीजिए, मारिया, सर एंड्रयू की चीक, टॉबी बेल्च, मेल्वोलियो, सर टोपास का जो क्रिएटेड कैरेक्टर था, ये मीन्स दिस पर्टिकुलर गैंग इज मेड फॉर मेकिंग यू लाफ। इस तरह के जो सब्सिडियरी प्लॉट, सब प्लॉट, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको ये लाइट एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट कर रखना। अदरवाइज जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो तो सीरियस एक्शन में ही इन्वॉल्व रहते हैं। सो दे रिमेन थ्रू आउट इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन इन द डेन्यूमो, दे कम आउट ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन दैट रिजल्ट्स इन द रिजोल्यूशन। वो रिजोल्यूशन हैप्पी एंडिंग में उनके कन्वर्ट होता है, दो वो अलग चीज है। तो ये कॉमनली आप हर किसी में देखोगे। जो लाफ्टर है और मर्थफुल सिचुएशन है, दैट कम्स फ्रॉम द माइनर कैरेक्टर्स। ये इसमें चाहे लिख लीजिए, मर्थ और लाफ्टर डिराइव्स फ्रॉम माइनर कैरेक्टर। Minor characters' responsibility is to make you laugh, or even among them, some characters are there to make you wise also, just like the characters of fools and other sort of characters. जो भी clowns, fools, जो माउथ पीस हैं शेक्सपियर के, वो आपको इंटेलिजेंट भी बनाते हैं, विजडम भी, मतलब देयर स्पीचेज आर फुल ऑफ विजडम, प्रैक्टिकल विजडम, और द फिलोसफी ऑफ द लाइफ, और रियलिस्टिक arguments. Sometimes the arguments seem to be paradoxical, however, they are full of real practicability. वो आपको सारा माइनर कैरेक्टर के थ्रू मिलेगा। जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, दे आर इन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्लॉट। वो प्लॉट की कॉम्प्लिकेशन जो है वो थोड़ी सी प्रिवेल करती है उनके ऊपर, वो नहीं है। ठीक। इसके बाद में इन ऑल कॉमेडीज दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज ऑलवेज देयर। सॉन्ग्स का तो आपको जो बुक है वो ओशन ऑफ लिटरेचर, उसमें आपको पूरा चैप्टर ही है। हर पर्टिकुलरली हर इंपॉर्टेंट जो कॉमेडी है उसमें सॉन्ग्स है। देर आर सॉन्ग्स इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब आप ये कॉन्सेप्ट कॉमेडी में ही ज़्यादा क्यों है, ट्रेजेडी में भी सॉन्ग्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन कॉमेडी में, हर किसी कॉमेडी में, लगभग लगभग हर किसी कॉमेडी में है। तो वो क्यों है? आप एक रियल लाइफ सिचुएशन से आप अपने आप को कनेक्ट करिए। व्हेन यू आर क्वाइट हैप्पी, व्हाट यू नॉर्मली डू? यू फील लाइक सिंगिंग, यू फील लाइक लिसनिंग सॉन्ग। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो व्हाट यू डू? नॉर्मली यू फील लाइक सिंगिंग। सो ये इस चीज को रिक्रिएट करने के लिए, और इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमेडी फ्रॉम दिस एंगल, when the people are happy or the character is happy, so it is quite natural for him or her to feel like singing, feel like listening to music. कुछ जो लव लॉर्न कैरेक्टर्स हैं जैसे ड्यूक और साइनो, वो तो पूरे लव लेडन कैरेक्टर्स हैं, लव लॉर्न कैरेक्टर्स हैं, तो वो उनके साथ होते रहता है। व्हेन द कैरेक्टर और कैरेक्टर्स इन कॉमेडीज दे फील लाइट, दे फील हैप्पी, देयर इज अ सॉन्ग। और इसको हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री से बढ़िया कौन समझ सकता है? इन बॉलीवुड मूवीज वी हैव सॉन्ग्स फॉर एवरी सिचुएशन, इवन समटाइम्स अनकॉन्टेक्चुअल। कोई बात है तब भी गाने हैं, नहीं है तब भी गाने हैं। ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ सॉन्ग। All means quite contrary to your expectation, there comes a song. Sometimes it is desirable, it is contextual, other times it is irrelevant, it is quite unnecessary. There was no need of this song. जैसे आइटम सॉन्ग्स, आपने आइटम सॉन्ग्स खूब देखे होंगे। What is the utility of the item songs in a movie? What function do they perform? I don't know why they are inserted, because they are inserted for the entertainment. प्लॉट और स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कोई नीड नहीं होती। अब वैसी थोड़ी सी एक्शन मूवी होगी तो उसमें तो जरूर होगा वो, और वो क्यों होगा?
वो एक बैकग्राउंड कवर देता है. मीन वाइल द विलेन इज इंडल्ज इन मैरी मेकिंग of by this item song, and then the hero comes. हीरो को आने में जितना टाइम लगेगा, रास्ते ढूंढने में जितना टाइम लगेगा, वो आइटम सॉन्ग का टाइम उसको कवर कर देता है, ताकि वो उस समय विलेन जो है वो इंडल्ज रहे. ही रिमेन्स इंडल्ज, ही रिमेन्स बिजी, बिजी इन मैरी मेकिंग. उससे बीच में हीरो आ जाता है, फिर वो उसको दबोच लेता है. ये एक कॉन्सेप्ट आप जोड़ सकते हो, हालांकि ये भी इररिलेवेंट है, खाली एक बकवास सी बात है ये. बाकी कुछ कॉन्टेक्ट, कुछ सॉन्ग्स हैं जो कॉन्टेक्चुअल हो भी सकते हैं इनफैक्ट. तो लेकिन ज्यादातर आप देखोगे मूवी में कोई सॉन्ग अगर कॉन्टेक्चुअल होगा तो एक दो सॉन्ग्स हो सकते हैं कॉन्टेक्चुअल. एक पूरी की पूरी मूवी में 8-10 गाने हैं, 7-8 गाने हैं, 5-6 गाने हैं, तो वो क्या है, मतलब दे आर इंसर्टेड फॉर देयर ओन सेक. और उससे भी बड़ा रीजन उसमें क्या है, इट इज ऑल अबाउट मनी, इट इज ऑल अबाउट प्रॉफिट. क्योंकि वो म्यूजिक एल्बम जो है वो प्री रिलीज होती है, मूवी के रिलीज से पहले वो रिलीज की जाती है, और वो म्यूजिक वही लोगों को पसंद होता है. एंड देन नया नहीं तो पॉप म्यूजिक कोई सुनता नहीं है, इस मूवी के नाम से जनरली हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो उसको लगता है ये इस मूवी का गाना है तो सुन लेंगे. पॉप म्यूजिक को नॉर्मली शहर में लोग सुन लेते होंगे, गाँव गाँव में पॉप म्यूजिक का कोई इतना भारी चलन उसमें नहीं होता, कॉन्सर्ट का और इनका कोई चलन नहीं होता. तो वो मूवी के नाम से एसोसिएट रहते हैं, तो मूवी का सॉन्ग पहले आएंगे, तो सॉन्ग ऑलरेडी वो अच्छी खासी कमाई हो जाती है उससे, तो वो मनी का भी एक कहीं ना कहीं रिलेशन उसमें है. इनफैक्ट क्या है ये मनी और ऑडियंस का इंक्लिनेशन टुवर्ड सॉन्ग, ऑडियंस की लाइकिंग, ये क्या है, कॉमन है, यूनिवर्सल है. द ऑडियंस ऑफ एवरी प्लेस, एवरी टाइम, एवरी कम्युनिटी, उसको व्हेन एवर ही फील्स लाइट, व्हेन एवर ही फील्स हैप्पी, उसको क्या चाहिए, म्यूजिक चाहिए. तो म्यूजिक यहाँ पर फिर आपको कॉमनली दिखेगा, सॉन्ग्स दिखेंगे, समटाइम्स सैड सॉन्ग, अदर टाइम्स हैप्पी सॉन्ग्स, और म्यूजिक चाहिएगा. जैसे ट्वेल्थ नाइट की तो फर्स्ट लाइन ही क्या है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन. सो ही इज अ लव लॉर्न कैरेक्टर एंड देन ही फील्स light when he listens to the music. Music consoles his parched up soul. जो उसकी लव लेडन सोल है, उसको वो कंसोल ही क्या करता है, म्यूजिक करता है. सो देर इज अ नीड टू satiate, to satisfy the instinct of human being when they feel lonely, when they feel happy, when they feel sad, when they feel in different mood. वो हर तरह के म्यूजिक उसको क्या है, लाइट फील कराते हैं. तो दैट्स व्हाई द इंक्लूजन ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग इज इन प्रोफ्यूज मैनर. खूब मिलेगा आपको यहाँ पर. शायद बॉलीवुड वालों ने शेक्सपियर से ही सीखा होगा सॉन्ग्स का. फिर आता है, कुछ नेम्स भी आप बता देते हैं, ये बुक का मैं बता ही रहा हूँ, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक इन लिटरेचर. शेक्सपियर्स प्लेस सिम्बलिन में बड़ा फेमस सॉन्ग है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन. ये बड़ा फेमस सॉन्ग है. उस टेम्पेस्ट में एरियल का सॉन्ग बड़ा फेमस है, वो जो कि दीज वर द आईज दैट वर, दीज आर द पल्स दैट वर हिज आईज, ये वाला जो है. और द इट वाज अ लवर एंड लेस, ये एज यू लाइक इट में है. और मिस्ट्रेस माइंड वेयर एवर यू आर रोमिंग, ये ट्वेल्थ नाइट में है. व्हेन ग्रिपिंग ग्रीफ द हार्ट डथ वुंड, ये रोमियो एंड जूलियट में है. और फुल फैथम फाइव द फादर लाइज, ये टेम्पेस्ट में है. मतलब इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉमेडीज देर आर सॉन्ग्स, फेमस भी हैं और जो काफी फेमस वो हुए हैं. कुछ तो सॉन्ग्स इनके सोनेट की फॉर्म में ही हैं, जो सोनेट्स थे इनके, वो 2-3 ड्रामाज में तो वही सॉन्ग की फॉर्म में है. कुछ जो सॉन्ग्स एडिशनली भी पब्लिश हुए थे वो भी इनके प्लेज में है. तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज कॉमेडीज. ठीक. फिर आता है क्लाउन एंड फूल्स. माउथ पीस ऑफ द राइटर, इंटेलिजेंस को प्रेजेंट करने के लिए, in order to make other characters realize what they are actually doing, in order to comment on the particular situation, or in order to bring the philosophy into action. ये सब functions clowns और ये fools इनके थ्रू वो किया था. They are not merely characters, they are caricatures, they have significant roles.
कई जगह तो क्या होता है कि ये जो प्रोटैगनिस्ट है उसके मतलब बेस्ट फ्रेंड के फॉर्म में होते हैं, फॉलस्टाफ, फेस्टे, क्लाउन, फूल, जैसे किंग लियर में ट्रेजेडीज में भी है ये क्लाउन्स। तो ये आपको हर तरह के ड्रामा जो शेक्सपियर के हैं, चाहे वो हिस्ट्रीज हो, चाहे वो रोमांसेस हो, ट्रेजी कॉमेडी, कॉमेडी ट्रेजेडी, सब में है। तो ये आपको कैरेक्टर्स हमेशा मिलेंगे। Perhaps this was the need of the Elizabethan audience also, or this was the concept that they evolved. The Elizabethan dramatists, they evolved this concept of bringing clowns, bringing some other character whose statements are unconventional, unconventional, जो आपको मतलब दे मेक यू रियलाइज व्हाट दे आर एक्चुअली मीनिंग और व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉप। और since they are told by the clowns, you may also shun them away. You can also overlook them. ये भी है. If you want to take them seriously, you can take, or if you feel that it is irrelevant, you can repel because they are told by the clowns. तो clowns की जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉल्स स्टाफ का तो जो एक्शन, मेन एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फेस्टे का मेन एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉमनली आपको कॉमेडीज में मिल जाएंगे, और देयर रोल इन कॉमेडीज इज फार सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द रोल इन ट्रेजेडीज। ठीक। फिर लास्ट में जो ट्रेजेडी में था वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन इज द सेम। प्लॉट कंस्ट्रक्शन वही, एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशन। Here the complications are not so severe. Complication is the entangled knot in the relationship. Identity, relationship, यही सब में complication है. Some character did not or could not, failed to identify other character. Other character was in the guise of other character, other persona. Other character had the fascination for other character. So all mixed up. So they get mixed up and then they lead to the crisis. Here, crisis is not the tragic crisis. It is the crisis for its own sake, leading to the complication of this light events. ऐसा कुछ नहीं है कि ये complication, this will result in the death, this will result in the tragedy, this will result in a complicated situation only, nothing else. वो complication ऐसी होगी कि थोड़ी देर बाद रिजॉल्व हो सकती है, और उसके बाद में ये फिर क्राइसिस के बाद में रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन डेन्यूमो यहाँ पर जो है वो आपको फाइनल दैट रिजल्ट्स इन हैप्पी एंडिंग मींस ऑल द। यहाँ पर तो आपको कॉमेडीज में जो सारे कैरेक्टर्स कौन से होंगे, लवर्स होंगे, लवर्स एंड कपल्स। सो लवर्स एंड कपल्स इन मोस्ट ऑफ द प्लेस दे गेट रीयूनाइटेड, दे गेट मैरिड। लास्ट में या तो शादी हो जाती है, यूनाइटेड हो जाते हैं, दे गेट व्हाट दे डिजायर्ड, दे एस्पायर्ड फॉर, दे लव्ड, और उनका पूरी मैच मेकिंग सब कुछ जो है फाइनल हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक कॉमन ये जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है वो तो ऑलमोस्ट फॉर ऑल द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर वो कॉमन ही है, हर जगह कॉमन ही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। बस कॉम्प्लेक्स और सिंपल प्लॉट का कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है, अदरवाइज बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इतना सस्पेंसफुल है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। दिस इज ऑल प्रिडिक्टेबल्स इफ यू, अगर आज की उस जो लिटरेरी नॉलेज उसको आप अप्लाई करो और यू आर विटनेसिंग द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो टू सर्टेन एक्सटेंट यू कैन प्रिडिक्ट। आप ज्यादातर केसेस में प्रिडिक्ट कर लोगे व्हाट इज गोना हैपन आफ्टर दैट, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव सीन। अगर आप आज, जो कि आपने बहुत लिटरेचर पहले पढ़ा हुआ है, बहुत सारी मूवीज देखी हुई है, सो यू नो व्हाट usually happens in movies or stories, and then you happen to watch a drama or read drama of Shakespeare, तो आपको क्या लगेगा, इट इज ऑल प्रिडिक्टेबल। आपको चीजें प्रिडिक्टेबल ज्यादा लग जाएंगी कि भाई ये मुझे लगता है ऐसे ही होगा, क्योंकि चीजें ऐसे ही होती है। हाँ, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लिटरेचर, यू आर द वेरी फर्स्ट थिंग एज लिटरेचर यू आर विटनेसिंग
एंड दैट इज द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर। तो आपको वो फैसिनेट कर सकती है चीजें, तब आपको हो सकता है अनप्रिडिक्टेबल लगे। तो प्लॉट कंस्ट्रक्शन वो नॉर्मल सी ही रही है, उसमें कुछ बहुत बड़ी सस्पेंस और बहुत बड़ा थ्रिलिंग इस तरह का कुछ नहीं रहा है। वो चीज़ें ऐसे ही रही है नॉर्मल, चाहे वो कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, या किसी कोई और जॉनर ऑफ लिटरेचर हो शेक्सपियर की, वहाँ पे सब कुछ ऐसे ही रहा है। तो ये कॉमेडी के बारे में सारा रहा। इसको भी आप पूरा ट्राई करिए कि पूरा लिखो इसको, उसका पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करो, जो भी वट एवर यू कुड मेक आउट ऑफ दिस लेक्चर। सो एक 2 पेजेस का, 3 पेजेस का, 3 पेजेस का आंसर आपका और 4 पेजेस का आंसर आपका हो सकता है। इससे एक राइटिंग प्रैक्टिस भी इसी बहाने हो जाएगी, अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स। इसमें बस ये है कि यहाँ पे इस वीडियो में बहुत जो इंस्टेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कैरेक्टर्स के नेम्स हैं, वो ओरली है, तो वो आपको रिकलेक्ट करने पड़ेंगे। दे हैव नॉट बीन रिटन हेयर फॉर योर रेफरेंस। तो आप उसको दोबारा से रिकलेक्ट करके कि कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर के कौन से कैरेक्टर का इंस्टेंस था, वो आप को रिलेट कर सकते हो।